everyone. As you know that I have started a new lecture series that is based on current affair, monthly current affair. So I am referring Vision IAS monthly current affair. Okay, so I have started from the May month and it will go for May till 2024 for the civil services examination 2024. Okay, and obviously for the other examination like UP, TCS and other state service examinations. So it will be monthly wise. So I will deal with one by one, May month, June month, July month, etc. So and it will be topic wise. So I'm doing polity and governance. So one video I've already uploaded. So if you're new in this channel, please watch that videos. That is based on recently passed ordinance. I mean not passed ordinance. Is like when I recorded the video, that bill was already passed, but since this is the current affair of May month, so it is that time it was ordinance. So it's like okay related to Delhi. Okay. Anyway, that is not much important. So today we are going to see one more topic from the polity and governance. That is very important topic, which is given in this magazine. So we will see in very detail what is given here. So anyway, this is about myself. Let's see that. Okay, so the second topic is given in this magazine is nothing but the Model Prison Act 2023. Okay, so they are going to, the government is going to do some, modification, some changes in this Prison Act that is already available. So they are going to modify and they will make some changes. So we'll see this what this Model Prison Act says that. So why in news? So the Ministry of Home Affairs MHA has prepared the Model Prison Act 2023 that will replace the Prison Act 1894. Okay, तो जो हमारा 1894 में जो प्रिजन एक्ट है, ओके, वही चीज़ चलता आ रहा था, तो उसको मॉडिफाई करके एक मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 लाया जाएगा. ओके, so this is the thing. So Ministry of Home Affairs has prepared this act. Now we'll see about Prison Act 1984. What this Prison Act 1984 says. The first legislation that govern the management and the administration of prison in India. In India was the Prison Act 1894. Okay, तो ये जो हमारा Prison Act 1894 है, this is the first legislation जो कि उस समय बना था और it was the prison को govern manage करने के लिए था. The act had its origin and recommendation of Prison Discipline Committee appointed in 1836 by Lord Macaulay. Okay, so ये चीज़ recommend किया गया था, एक committee prison डिसिप्लिन कमेटी बनी थी 1836 में, ठीक है, वो अपॉइंट किया गया था बाय लॉर्ड मैकॉले. सो इट डिफाइंड अ प्रिजन एज एनी जेल और प्लेस यूज्ड परमानेंटली और टेम्परेरी फॉर द डिटेंशन ऑफ प्रिजनर एक्सक्लूडिंग पुलिस कस्टडी एंड सब्सिडरी जेल. ओके, इसमें प्रिजन को डिफाइन किया गया है कि इट कैन बी अ टेम्परेरी या परमानेंट टू डिटेन अ पीपल या प्रिजनर्स, ठीक है, बट एक्सक्लूडिंग पुलिस कस्टडी एंड सब्सिडरी जेल. ठीक है, सब्सिडरी जेल नहीं होगा और इसमें पुलिस की कस्टडी नहीं होगी. इट विल बी लाइक एंड इट विल बी लाइक टेम्परेरी और परमानेंटली. नाउ इट ऑल्सो लेड डाउन प्रोविजन फॉर द प्रिजनर्स एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड विजिट. ठीक है, तो इसमें ऐसा था कि जो प्रिजनर्स होंगे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट होगा, हेल्थ होगा एंड विजिट्स वगैरह भी होगा. जैसे आप देखते हैं, अभी भी देखते हैं कि अगर कोई प्रिजन में है तो वो जब तक होते हैं उसके अंदर उनको काम दिया जाता है, उनके हेल्थ के बारे में भी देखा जाता है और उनसे लोग मिलने जा सकते हैं. तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हैं अभी. ठीक है, नाउ द MHA, ये उस टाइम पे ही था, वैसे चलता आ रहा है. MHA फाउंड वेरियस शॉर्टकमिंग्स इन द एक्ट एंड नोटिस और सिग्निफिकेंट लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन करेक्टिव मेजर. ठीक है, तो अब मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर को ऐसा लगा है कि देयर आर वेरी शॉर्टकमिंग इन दिस एक्ट, सो एंड दे नोटिस एंड
देयर emphasis to correct दिस मेजर. ओके, तो मे बी उसको इम्प्रूव करेंगे इस एक्ट के थ्रू. It directed the Bureau of Police Research and Development to review the laws and prepare the new draft which culminated in the model एक्ट 2023. ठीक है, तो ये जो टास्क दिया गया ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दिया गया, वो रिव्यू करेंगे इस लॉ को एंड दे विल प्रिपेयर अ न्यू ड्राफ्ट एंड दे विल कल्मिनेट दिस विद द मॉडल एक्ट 2023. ओके, सो नीड फॉर रिफॉर्म द एक्ट. क्यों ऐसा, मतलब क्यों इसमें रिफॉर्म की जरूरत है? विल सी दैट. कॉलोनियल हैंगओवर, मतलब अब क्यों उसमें चेंजेस लेके आना, क्यों उसमें रिफॉर्म की जरूरत है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर देयर. ओके, सो विल सी दैट. सो colonial hangover. So India's incarnation system is prone to abuse since it was set by the British to subjugate political prisoners. The act permitted whipping, provided that the number of strips shall not exceed 30. Strips shall not exceed 30, albeit for only male prisoner. ठीक है, तो ये जैसे ब्रिटिशर्स उस टाइम पे क्या कहते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर, जैसे उस टाइम पे वो थे, तो हमारे जो भी पॉलिटिशियन हुआ करते थे या फिर जो भी जो फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे, उनको पकड़ के बंद करना, वो ही उनका पर्पस हुआ करता था. ठीक है, अब ये सब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट एक्चुअली ये उनका बस ये था कि पकड़ के बंद कर दो उसमें, और कुछ भी नहीं. ठीक है, और क्या है इसमें, टू मेक prisons reformative institutions. Okay, so Prison Act 1894 focuses on keeping criminals in custody and enforcing discipline and order in prisons, leaving on no provision for the reform and rehabilitation of prisoners. Today prisons are seen as reformative and correctional institution. ठीक है, अभी देखिए उस टाइम पे क्या था कि वो उनको जो भी क्रिमिनल्स होते थे उनको कस्टडी में लेते थे, और जो भी डिसिप्लिन होती है उनको इन्फोर्स करना होता था, और कुछ भी उसमें ऐसा नहीं था कि रिफॉर्म करना है वगैरह, तो उनके रिहेबिलिटेशन का भी कुछ नहीं होता था. बट अभी क्या है, अभी का जो हमारा है प्रिजन्स है, इट इज़ अ रिफॉर्मेटिव एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, अगर मान लो कि प्रॉब्लम है तो उसको रिफॉर्म भी करना, और कोई भी चीज़ दिक्कत है तो उसको ठीक भी करना है. बट पहले ऐसा नहीं था. फॉर बेटर लिविंग फैसिलिटी ऑफ प्रिजनर्स, फॉर बेटर लिविंग फैसिलिटी ऑफ प्रिजनर्स देयर इज अ नीड टू मेक जेल मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजिकल, अडॉप्ट विद स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी मेजर. ठीक है, जैसे आप अपनी हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी, वहाँ पे कैसे प्रिजन्स होते हैं. दे विल, वहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते हैं या फिर जो भी कैदी वगैरह होते हैं, दे विल नॉट फील लाइक दे आर इन जेल. उनको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे होती है. इवन उनको 10 ईयर 20 ईयर भी रहना है, दे कैन ईजिली स्टे देयर. उनके अच्छा खासा होता है, दे कैन वर्क, I mean they can cook, they can, I mean they have all the facility the way like at home. But इंडिया में इतना पॉसिबल नहीं, क्योंकि I mean the number of prisoners are more. But yes, we can reform, I mean we can increase the number of jails, and we can shift them, and we can make them hygiene, we can make them I mean the way they can stay there. So this is the main thing. I mean that's why they are talking about facility of prisoners. So there is need to make jail modern and technological, adopt with stringent security measure. Okay, also there is need to introduce better living and health facility, libraries and training programs for the prisoner to help them back to the society. ठीक है, अब उसमें ऐसे नहीं होते हैं कि सारे के सारे जो prisoners होते हैं, I mean obviously जो जेल में गया वो कुछ ना कुछ क्राइम करके ही गया होगा, लेकिन किसी का क्राइम बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है. कोई मान लेते 5 साल के लिए गया या 10 ईयर के लिए गया, एंड ही इज़ ऑफ एज ऑफ 25, तो ऐसा था नहीं कि उसकी लाइफ पूरी खत्म हो गई है. अगर मान लेते वो 10 ईयर के लिए गया, तो एट द एंड ऑफ इज जेल ही विल बी ऑफ 30 ईयर. तो उसके लिए उसकी हेल्थ की फैसिलिटी होनी चाहिए, वहाँ पे लाइब्रेरीज होनी चाहिए ताकि वो पढ़ सके,
उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा सकता है ताकि जो जो टाइम वो एक्सपेंड कर रहे हैं उसमें वो कुछ स्किल सीख सकें, ताकि वो बाहर जब निकल के जाते हैं तो वो सोसाइटी में दोबारा वापस मिक्स हो सके। ठीक है, इज़ नॉट लाइक कि क्राइम करके आया है तो he will completely away from the society. So that's why these things is very important. So I think this is the reason of making a very nice jail in the what do you say, in foreign countries. So even though after leaving from the jail they can get back to the society very easily. So I think the same thing we are trying to adopt that. So that's why this bill is going to come. Now what is the next thing? The killing and violence within prison. So there have been incident of killing and gang violence within prison. Example, recently 33-year-old inmate was allegedly stabbed to death by the member of rival gangs inside the Tihar jail. जैसे होता क्या है ना कि अगर मान लेते जेल काफ़ी क्राउडेड है तो उसमें ऑब्वियसली क्रिमिनल्स, आई मीन जो लोग, आई विल नॉट से क्रिमिनल्स, बट जो लोग कुछ ना कुछ क्राइम करके गए होते हैं तो वहाँ पे भी दे फॉर्म द सम ग्रुप. तो अभी जैसे इसमें एग्जांपल दे रहा है कि 33 ईयर को, आई मीन को ओल्ड को, आई मीन इमिनेट्स को दे हैव किल्ड, आई मीन दे हैव स्टब एंड इन तिहाड़ जेल वो एक गैंग बना लिए थे. फिर इनके बीच में कोई राइवलरी रही होगी, पहले रही होगी, फिर वहाँ पे मिल गया तो वहाँ पे उसको मार दिया. तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए, तो ताकि चीज़ें उनको अलग अलग सेपरेट भी किया जा सके, इस टाइप की अगर चीज़ें होती हैं तो. ओके, सो अदर इशूज बाय प्रिजन्स. ठीक है, देखते हैं. हाई अंडर ट्रायल्स. तो प्रिजन स्टैटिक्स ऑफ इंडिया 2021 shows that more than 77% of jail inmates are under trial. The same data set also record 25% of this prison population are being illiterate. ठीक है, देखिए इसमें देखिए थोड़ा सा 77% ऑफ जेल इमिनेट्स आर अंडर ट्रायल. अब उसमें जो भी है वो उनका चल रहा है केस. ठीक है, अगर मान लेते हैं उनका केस जल्दी से करके ख़त्म कर दिए तो जो क्राउड है हमारे जेल का वो कम हो सकता है. और इसमें 25% ऑफ प्रिजनर पॉपुलेशन आर बीइंग इलिटरेट, मतलब 25% ऐसे हैं जो कि लिखना पढ़ना तक नहीं जानते हैं. तो दे डोंट नो हाउ टू टैकल देयर वट एवर क्राइम दे हैव डन, दे डोंट नो हाउ टू टैकल. सो दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द रीज़न ऑफ आई मीन पॉपुलेटिंग द प्रिजन. ओके, जो प्रिजन का जो पॉपुलेशन है वो इस वजह से भी बढ़ रहा है. ट्रायल्स हो नहीं रहे हैं, लोग निकल नहीं रहे हैं. ठीक है, और वो क्राइम्स और अगर हो रहे हैं तो बढ़ते जा रहे हैं. नेक्स्ट, हाई ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ प्रिजन. ठीक है, अब एक और चीज़ है. एज पर NCRB 2021 स्टैटिक्स देयर वर टोटल ऑफ 5,54,034 पीपल्स इन प्रिजन अक्रॉस द इंडिया as against the capacity of 4,25,609. Prisons in Delhi had occupancy rate 183%. ठीक है, हमारे जो इंडिया में जितनी भी जेल्स हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है? 4,25,609. बट अभी हैं कितने? 5,54,034. ठीक है, अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें उसमें 183% तिहाड़ जेल जो भी है, अगर उसमें 100 को रखना है लेकिन 183 को रखे हुए हैं. तो ऑलरेडी कितना क्राउडेड होगा और उसको मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होगा जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं. ठीक है, सो दैट्स वाई दिस थिंग इज हैपनिंग व्हाट वी हैव सीन अर्लियर. एनीवे, डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग बेल, ये भी एक रीज़न है. डिलेइंग इन एजुकेशन प्रोसेस, लैक ऑफ सपोर्ट फॉर फाइलिंग of bail application and or inability to comply with bail condition in the bail system further leads to prolonged incarceration. ठीक है, तो जो ये बेल लेने का जो सिस्टम उसका एप्लीकेशन है इसमें भी जैसे कि अभी जो 25% जो इलिटरेट हैं उनको नहीं पता वो कैसे लेंगे. इवन अगर उनको नहीं पता है कि हम बेल ले सकते हैं तो वो पड़े हुए हैं बस वहाँ पे जेल में जाके जेल काट रहे हैं. So these are the also many conditions are there. So that's why I mean कुल मिलाजुला के ये बोल सकते हैं there is difficulty in taking bail. और जो बेल लेने का जो प्रोसीजर है वो भी थोड़ा सा वैसा है कि अब once you fulfill all the conditions then only you will get the bail. Okay,
So now next, in this context, Supreme Court directed the Union government to consider introducing a separate bail act to the streamline the process granting bail. ठीक है, अब इस चीज़ से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि यू हैव इंट्रोड्यूस अ सेपरेट बेल एक्ट सो दैट द स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग बेल, तो कि जो भी लोग एलिजिबल हैं बेल लेने के लिए इस बेल एक्ट को यूज करके दे कैन ग्रांट द बेल इफ दे आर एलिजिबल. Okay, so the Supreme Court has been directed to the Union government. I don't know whether this has been done or not. We'll see later. I mean, maybe in future अगर नहीं हुआ है तो ये हो सकता है कि आ जाए. Now vacancies in prison official. In Uttarakhand, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, over 60% of officer positions were vacant. This increased burden on officers and also leads to poor management of prison, including crime within the prison. अब देखिए एक और प्रॉब्लम है, जो हमारे जो जेल्स हैं, प्रिजन्स हैं, लाइक उत्तराखंड की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, बिहार या झारखंड, यहाँ पे काफ़ी वैकेंसी है, उसको फिल नहीं किया गया. तो इसकी वजह से जो भी वहाँ पे ना ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा है. ठीक है, आप मान लेते हैं कि 4 आदमी का काम 1 आदमी करेगा. So he has already lot of responsibility. He is not able to manage all those things. So there is a poor management of poor. So that's why the crime is increasing in the prisons. Okay. So this they are trying to say unnatural death in prison. So according to prison statistics in India 2021, there were 185 unnatural deaths of inmates in 2021. Within 150 inmates committing suicide. Okay, तो देखिए अभी इसमें बोला अननेचुरल डेथ, एक होता है कि आदमी बस अपने आप मर गया, बट इसमें ऐसा बोल रहा है कि एक स्टैटिक्स 2021 में आया था कि 185 अननेचुरल डेथ्स हुई हैं. ठीक है, उसमें मान लेते हैं कि 150 बोल रहा है कि दे आर कमिटिंग सुसाइड. अब वो क्यों कमिट सुसाइड किए, हो सकता है कि वहाँ पे उनको इतनी प्रॉब्लम्स हो कि दे वर नॉट एबल टू हैंडल, या फिर उनको पता है कि दे आर गोइंग टू डाई इन द जेल इटसेल्फ, तो बाद में मरने से अच्छा मर जाओ. सो दैट्स वाई दे हैव कमिटेड सुसाइड. एंड रेस्ट 35 में भी इट इज़ आई मीन वो ऐसा हो सकता है कि दो ग्रुप के बीच में फाइट हो, या फिर दे इवन एक लोग भी फाइट करके एक दूसरे को मार सकते हैं. सो दिस इज द थिंग. सो अननेचुरल डेथ इज ऑल्सो हैपनिंग इन द प्रिजन. Okay, so some suggestions to reform prisons. Supreme Court has outlined 3 broad principles regarding imprisonment and custody, which shall follow. First, a person in prison does not become a non-person. A person in prison does not become a non-person. Okay, so the Supreme Court has told that a person इन प्रिजन डज नॉट बिकम अ नॉन पर्सन. ठीक है, नॉन पर्सन प्रिजनर नहीं हो सकता. सेकंड, अ पर्सन इन प्रिजन इंटाइटल्ड टू ऑल ह्यूमन राइट विद इन द लिमिटेशन एंड इम्प्रिजनमेंट. ठीक है, तो जो भी वहाँ पे प्रिजनर्स हैं उनको दे आर इंटाइटल्ड टू गेट ऑल द ह्यूमन राइट्स. थर्ड, देयर इज नो जुरिडिक्शन फॉर एग्रीवेशन एंड सफरिंग ऑलरेडी इनहेरेंट द प्रोसेस ऑफ इनकारनेशन. Okay, so this is the third one. Easier bail provision. Section 436A of CRPC stipulates that a person having undergone detention for half as much time as the maximum period of imprisonment except the death penalty is entitled to release on bail with or without श्योरिटीज़. ठीक है, देखिए अगर किसी को डेथ पेनल्टी नहीं है तो उसको अंडर सेक्शन 436A CRPC के थ्रू ही आर एलिजिबल टू गेट अ बेल, और उसको विदाउट श्योरिटी उनको दे दिया जाए, ऐसा बोला जा रहा है. आई मीन इट इज़ ईजियर टू ईजियर बेल प्रोविज़न, जो बेल प्रोविज़न को ईजियर किया जाए. तो अब इस बात की अगर बेल प्रोविज़न ईजी है, देखिए बेल का मतलब क्या होता है. अगर मान लेते हैं कि ऐसा पता है कि इस बंदे ने कोई क्राइम किया है, एबीसी बंदे ने कोई क्राइम किया है, तो अगर वो अंडर ट्रायल है, इट हैज़ बीन नॉट, ऐसा प्रूफ नहीं हुआ कि उसने किया है, तो जब तक वो किया नहीं है उसको आप जेल में नहीं रख सकते.
ही इज एलिजिबल टू गेट अ बेल। जब कोर्ट से हो जाएगा कि हाँ उसने किया है क्राइम, उसके बाद फिर उसको 5 साल 10 साल 20 साल का जो भी सजा होगा तब उसको रखो। अब वो मान लो उसने बस सस्पेक्टेड है, हाँ उसने किया है, फिर भी आप रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इट विल बी क्राउडेड। सो वैसे केसेस में आप बेल दे दो, उनको बाहर रखो। जब उनका कंफर्म हो जाएगा ओके दे हैव डन द क्राइम, कीप इन जेल, दिस इज द थिंग। ओके, now some more thing, faster disposal of bail cases. In Hussain and ANR versus Union of India 2017, the Apex Court had ordered expeditious disposal of bail application along the principle of bail being norm and jail being exception. ठीक है, तो ये केस है जिसमें अगेंस्ट दिस गाय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग बेल। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। मुल्ला कमेटी। In 1980, the government of India set up committee on jail reform under the chairmanship of Justice A.N. Mullah. Some of the prominent recommendations of the Mullah committee are, okay, so this committee has been given some recommendation. So what are those? The prison staff to be properly trained and organized into different cadres, setting up all India service called Indian prisons करेक्शनल सर्विस। ठीक है, तो इस कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि जो हमारे प्रिजनल स्टाफ होते हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए बाय सेटिंग ऑल इंडिया सर्विस कॉल्ड इंडियन प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज, जो कि अभी तक आया नहीं है। ओके, इट वाज जस्ट अ रिकमेंडेशन। ठीक है, आफ्टर केयर रिहैबिलिटेशन एंड प्रोविजन to be an integral part of prison service. Okay, so this was the second one. The press and public to be allowed inside prison and allied correctional institution periodically. तो जो हमारे प्रेस है और पब्लिक है, they should allow into the prison. Okay, so that I mean if there is some problem, so they can come up with the solution. I mean they can give the suggestion so that it can improve. Next, under trial in jail to be reduced to bare minimum and they kept away from convict. ठीक है, तो obviously बता under trial jail to be reduced, under trial jail to be reduced to bare minimum, या जो under trial jail है उसको minimum कर दिया जाए, so that I mean जो क्या बोलते हैं convict जब तक नहीं है तब तक वो he has to be away from the jail. So these are the some recommendation by the A.N. Mullah committee. Okay. So some steps taken for prison reform. So model prison manual 2016. ठीक है, 2016 में कुछ इसमें चेंजेस किया गया था। मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016. So government in 2016 introduced a model prison manual. It aimed to bring basic uniformity in law, rules and regulations governing the administration of prisons and management of prisoners all over the country. ठीक है, however only 11 state and union territory have adopted the new manual. ठीक है, तो 2016 में जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक मॉडल प्रिजन मैनुअल रिलीज किया था। उस ठीक है, उसको लाइक यूनिफॉर्मिटी इन लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड था, जिसको 11 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ने उसको अडॉप्ट किया था। ओके, ओपन प्रिजन्स एन ओपन प्रिजन इज पैनल established in which the prisoners serve their sentence with minimal supervision and perimeter security and not locked up in prison cell. ठीक है, तो ये इस जैसे मान लेते हैं छोटा मोटा क्राइम किया है तो उसको जरूरत नहीं कि आप जेल में रखो, इसको ओपन प्रिजन में रखो और उसको मिनिमल सुपरविजन करना है। ठीक है, पेरीमीटर सिक्योरिटी नॉट लॉक, उसको जेल में रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी किया गया था इसमें, सम रिफॉर्म हुआ है। ठीक है, ओपन प्रिजन मॉडल अडॉप्टेड इन राजस्थान।
has promoted a reformative form of punishment and succeeded in the transforming the lives of inmates. See, I don't know, like ये जो ओपन प्रिजन है इसको किस तरीके से करना है, whether वो जेल में ही ओपन में रहेंगे या फिर बाहर में रहेंगे, दैट आई डोंट नो. ओके, यू प्लीज चेक इट. बट या राजस्थान ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है. ओके, ओपन प्रिजन नीड्स 92% लेस स्टाफ देन क्लोज जेल एंड इनकर मंथली कॉस्ट ऑफ ओनली ₹500 पर प्रिजनर. ठीक है, आई थिंक जेल के अंदर ही रहेंगे, बट दे विल बी ओपन. उनको हर समय वैसे नहीं रखना है. ठीक है, तो इसमें इसको ऐसा बोला जा रहा है कि अगर छोटा मोटा क्राइम है तो उसको ऐसे ओपन प्रिजन में रख सकते हैं. इसमें यह है कि 92% लेस स्टाफ रिक्वायर्ड की ज़रूरत है, और इसमें जो मंथली जो है ओनली ₹500 पर प्रिजनर खर्चा होगा. Okay, so that was the end of whatever given in that model court and model prison 23. I mean जो भी रिफॉर्म उसमें करना है, हो सकता, I mean जो एक्ट आएगा, I mean उसमें फिर चेंज वगैरह जो भी करेंगे. So that was the end of the topic which was given in the magazine. So some extra information always given by this book. So those extra things we are going to see here. So obviously that will be related to the prisons. So we'll see that. So they're asking one thing, do you know? Okay, so what is the Representation of People Act 1951 prohibit anyone confined in prison for exceeding the right to vote. This includes incarcerated prisoners as well as under trial. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये बोलता है कि अगर कोई भी जेल में है तो ही कैन राइट टू वोट, जो उसका अधिकार है, ही कैन वोट, वो जेल में ही दे सकता है. ठीक है, ये सब चीज़ें हैं. इवन अंडर ट्रायल है तो भी, और इवन पनिश्ड है तो भी. नेक्स्ट, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन से. ये सब एक्ट में नहीं दिया हो, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द मैगजीन, सो दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट. Okay, as per the provision of Constitution, prisons and person detained there fall under state list. Okay. This means that the responsibility of prisons management and administration solely vests with the state government, which alone is commanded to make appropriate legislative provision in this regard. ठीक है, तो ये जो हमारा ये स्टेट लिस्ट में आता है और स्टेट इस पे लॉ बना सकता है. ठीक है, दस द मॉडल एक्ट में सर्व एज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर स्टेट. ठीक है, तो मॉडल एक्ट ये जो भी मतलब मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेके आती है, तो जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे जितने भी जेल से उसके लिए एज अ मॉडल एक्ट होगा, उसको एज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर देम. ओके, सो दैट दे मे बेनिफिट फ्रॉम इट अडॉप्टिंग इन देयर जुरिडिक्शन. क्योंकि देखिए हर स्टेट की पुलिस अपनी अपनी पुलिस होती है. ठीक है, तो अब इस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकती है. तो इवन जैसे कि मान लीजिए प्रिजन्स स्टेट लिस्ट में आता है. ठीक है, डिटेन जो भी पर्सन प्रिजन्स एंड द पर्सन डिटेन देयर इन इज फॉल अंडर स्टेट लिस्ट. ठीक है, तो अब स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट मॉडल एक्ट लेके आ रही 2023, तो दिस विल बी एक्चुअली एक्ट एज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर द स्टेट, सो दैट दे कैन गेट अ बेनिफिट फ्रॉम इट एंड अडॉप्ट इन देयर जुरिडिक्शन. सो उनकी जो भी जुरिडिक्शन है उसमें उसको अडॉप्ट कर सकते हैं. दिस दे आर ट्राइंग टू से. ओके, कुछ और चीज, व्हाट प्रपोजल आर इंक्लूडेड अंडर मॉडल प्रिजन एक्ट 2023. सो दीज आर द proposals, okay, not provision, these are the proposals are included under the prison act. We'll see that. To encourage good conduct, provisions for grant of parole for law and remission to prisoners. Okay, parole is the system of conditional released and prisoners with suspension of the sentence for the specific period of time. Okay, so these are the proposals, okay, in model prison act. For law is given in case of long-term imprisonment, the period of law granted in the prisoner to treat as remission reduction in his sentence
Bail means procurement of release from the prisons of a person awaiting trial or an appeal. ठीक है? So these are the proposals for reformation and rehabilitation. Bring about attitudinal change towards prisoners, vocational training and skill development, for better safety and security. क्या चीज़ें क्या करना है? Separate accommodation for women and transgender inmates. Okay, use of technology in prisons administration, establishing high security jail. Okay, other measures, provision for and opens semi-open jail have also been inserted. Okay, measures for prisoners to video conference with court have also been introduced. ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई नहीं जा सकता है कोर्ट तो उसको हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकता है. ठीक है, तो वुमेन्स के लिए अलग सेपरेट करना है, एकोमोडेशन ट्रांसजेंडर के लिए अलग करना है. ठीक है, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करना है. ओके, इस्टेब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द यूज टेक्नोलॉजी. ओके, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, उसमें हाई सिक्योरिटी जेल बनाना है. तो ये सब चीज़ें हैं. ओके, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट करना, एटीट्यूडल चेंज टुवर्ड द प्रिजनर. जो प्रिजनर्स के प्रति जो ना क्रूड सा जो बिहेवियर होता है, जो वहाँ के स्टाफ्स होते हैं, उसको चेंज करने की ज़रूरत है. सो दीज आर द लाइक प्रपोजल्स हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द मॉडल प्रिजन एक्ट 2023. और क्या इसमें, अलॉन्ग विद द प्रिजन्स एक्ट 1894, द प्रिजनर्स एक्ट 1900 एंड द ट्रांसफर ऑफ prisoners act 1950 has also been reviewed and their relevant provision have been assimilated into the model act. ठीक है, तब ये देखिए प्रिजनर्स एक्ट 1900 है, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर एक्ट 1950 है. ये सबको रिव्यू किया जा रहा है. एंड ऑब्वियसली दिस प्रिजन एक्ट 1894, ये तीनों को रिव्यू किया जा रहा है और इसमें जो भी चेंजेस करना है उसको चेंज करके मॉडल एक्ट में ऐड करना है. ओके, सो दीज आर द proposals which will be in Model Prison Act 2023. Okay, so this was the end of this Model Prisoner Act 2023. So I hope you like that. Thank you for watching. Bye bye.